The need for socialization is not exclusive to human beings. Some animals connect, interact, and live together in a more complex way than we could imagine. They display different kinds of behavior and they live together in a group. We are going to discuss all about this in group living in animals. Myself, Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Now, if we see the animal classification, we have many groups. Animal kingdom is a huge kingdom in which there are many species and they contain vertebrates and invertebrates. Among vertebrates, mammals, reptiles, birds, amphibians, and fishes, they come under this category. And in invertebrates, protozoa, porifera, annelida, molluscans, platforms, echinoderms, and the largest of all this, which has number of insects in it, and that is arthropoda. But when we think about wildlife, when we speak about wildlife, generally the groups which come in our mind are mammals, reptiles, amphibians, fish, arthropods, mollusks, and birds. Mammals are the animals that have hair and they are warm-blooded. They drink milk, give feed milk to their babies. And what are reptiles? They have scales, they breathe air, they are cold-blooded, and they usually lay eggs on the land. Amphibians, in this, the animals that come, they can live both on land and water. They are cold-blooded. Fishes, they live in water, they have gills to breathe, scales and fin on their bodies, and they are cold-blooded. Arthropods are the most numerous animals on Earth. They have an exoskeleton made up of chitin. They do not have backbone and they are cold-blooded. Mollusca are soft-bodied animals and they may have hard external shells. Birds are warm-blooded. They have wings, feathers, beak, and their babies hatch from eggs. Now, what is group living? Group living is defined as individuals of the same species maintaining spatial proximity with one another over time with mechanism of social attraction. ग्रुप लिविंग किसको कहते हैं हम? जो सेम स्पीसीज के एनिमल्स हैं वो एक साथ एक समय में देखे जा सकते हैं और ये क्या करते हैं साथ में रह करके अपने आप को सुरक्षित भी रखेंगे, साथ में खाना खाएंगे। इनका बिहेवियर जो है वो काफ़ी जैसे हम ह्यूमन, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू दैट सोशलाइजेशन इज नॉट एक्सक्लूसिव टू ह्यूमन बीइंग्स, it is seen among animals also. And with when we think about animals, the animal which comes first in our mind is chimpanzee. जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है जो सोशल बिहेवियर शो करता है वो है चिंपैंजी. तो these animals represent the social connection in their species with their behavior. पर और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं. Now, one of the main characteristic of this social interaction is living in groups. ग्रुप लिविंग में क्या होता है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सोशल इंटरेक्शन है वो है कि वो ग्रुप में रहते हैं. एनिमल्स जो है दे गैदर टुगेदर टू ऑप्टिमाइज द प्रॉफिट ऑफ देयर एनवायरनमेंट. जिस वातावरण में वो रह रहे हैं वहाँ पर वो एक ग्रुप की तरह रहते हैं ताकि ऑप्टिमम जितना बेनिफिट उनको मिल सकता है वो उसको ले सकें. दिस एनवायरनमेंट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम. ये जो पर्यावरण है वो हमेशा सेम नहीं रहेगा क्योंकि वो तो वेरिएट होता रहता है ड्यू टू फिजिकल, केमिकल और बायोटिक फैक्टर्स. सो व्हाट वी से दैट एनिमल्स जो हैं वो एक साथ रहेंगे तो जितना पर्यावरण में बदलाव है उसमें किस तरह का एडेप्टेशन उनको लाना है ये वो मिलजुल करके जो है कर सकते हैं. तो कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं. एनिमल्स डू बेनिफिट फ्रॉम अ सीरीज ऑफ एडवांटेजेस बाय लिविंग इन ग्रुप, बट there may be a few disadvantages also. Now, one of the factor is a more stable body. Yani, when the individuals of a population stay together close to each other, the surface volume ratio is reduced, achieving a minimum loss of heat. On the other hand,
When animals are more exposed, there is a greater dissipation of body heat to the surroundings. क्या होता है कि ये जो एनिमल्स हैं, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, एम्परर पेंगुइन का कॉलोनी अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका, वी ऑल नो दैट व्हाट इज द टेम्परेचर ओवर देयर, इट इज़ द कोल्डेस्ट, माइनस माइनस डिग्री में जो है वहाँ पर टेम्परेचर होता है। तो उतने ठंडे टेम्परेचर में भी ये पेंगुइन्स जीवित रहते हैं। तो इनका जो बॉडी है वो क्या करता है कि जितना उनके बॉडी के अंदर जो वार्मनेस है उसको बचा के रखना, यानी मिनिमम लॉस ऑफ हीट, हीट डिसिपिएट होने से रोकने के लिए वो क्या करते हैं, सब एकाग्रत हो जाते हैं। दे ऑल गेट क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक में आ जाते हैं। जैसे वलरस है, सील है, पेंगुइन्स हैं, ये सब क्या करते हैं कि बिल्कुल एक के ऊपर एक ओवरलैप होते हुए लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सो दैट मिनिमम लॉस ऑफ हीट कैन टेक प्लेस। तो इससे इनका बॉडी का जो टेम्परेचर है, क्योंकि इतना अंटार्कटिका में इतनी ठंड होती है कि तुरंत अगर हीट डिसिपिएट हो गया तो वो ठंड में जम जाएंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता कि वो जम जाते हैं। दे हैव दैट एडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम ग्रेट लॉस ऑफ हीट, ज़्यादा हीट लॉस होने से वो बचाने के लिए ये जो ग्रुप लिविंग है ये इनके काम आ रहा है। इम्प्रूव्ड लोकोमोशन कैपेबिलिटीज, दूसरा बेनिफिट क्या है ग्रुप लिविंग में रहने का? द एडवांटेज हियर इज ऑब्टेन्ड बाय एनिमल्स दैट मूव इन अ फ्लूइड मीडियम एज दे सेव एनर्जी बाय ट्रैवलिंग इन ग्रुप। फ्लूइड मीडियम का मतलब जैसे हवा में, पानी में, यहाँ पर ग्रुप में जब ये चलते हैं तो इनका जो लोकोमोशन की जो कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। जैसे कि बर्ड्स हैं, बर्ड्स दैट ट्रैवल इन अ वी शेप। आपने कभी आसमान पे गौर किया हो, जब बर्ड्स का झुंड जाता है तो आप एक वी शेप का स्ट्रक्चर देखते हैं। आगे जाने वाले जो बर्ड्स होते हैं वो वी के दो एंड्स की तरह दूर दूर दिखाई देते हैं, फिर पीछे की लाइन आप जैसे जैसे देखेंगे वो टैपर होती जाएगी और एक वी का आकार दिखाई देता है। एंड दिस मैनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन, मैनी क्या बल्कि सब ने देखा होगा। आसमान की तरह अगर तरफ आपने कभी बर्ड्स को उड़ते हुए देखा झुंड में, इन अ फ्लॉक, तो व्हाट हैपन्स, इस तरह से वी शेप में चलने से उनको क्या बेनिफिट हुआ? व्हाट इज द बेनिफिट इन ट्रैवलिंग इन अ वी शेप फॉर्मेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन? माइग्रेशन में आप सब जानते हैं बर्ड्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर विदाउट एनी स्टॉपेज चलते हैं। जो टर्न जो बर्ड है वो तो 4000 किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकता है नॉन स्टॉप, एंड दैट टू कंटिन्यूस फॉर 2-3 days। और आसमान में आप सब जानते हैं कितना टर्बुलेंट विंड प्रेशर होता है, विंड का जो प्रेशर है वो कितना हाई होता है। तो दिस वी शेप्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन do so more efficiently, benefiting from the thrust generated at the ends of the wings of the birds that fly in first rows of the group। ग्रुप में जो फर्स्ट रो में उड़ रहे हैं उसके जो विंग्स के जो एंड पे जो थ्रस्ट हो लग रहा है वो बैक वालों के काम आता है, फिर उसके पीछे वालों के, फिर उसके पीछे वालों के। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, उस जो हवा में जो बहुत तेज़ी से जो विंड टर्बुलेंस की तरह हो रहा है उसको एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले आते हैं लैमिनर फ्लो में, जिससे वो एक बहाव की तरह खुद जैसे बहते हुए चले जा रहे हैं, इस तरह से वो उस मूवमेंट को यूज़ करते हैं। यू कैन सी वेरी क्लियरली। दूसरा है सर्वेलेंस टाइम। सर्वेलेंस टाइम हम किसको कहते हैं? जिसमें हम किसी पर निगरानी रखते हैं उसको हम सर्वेलेंट बोलते हैं ना। सर्वेलेंस किसको कहते हैं? व्हेन वी लुक एट समथिंग, बार बार देखना। जैसे कि आप इसके अंदर इस चित्र में देख सकते हैं, कार्ड्यूलिस जो है बर्ड विल रेज इट्स हेड ट्वाइस एज ऑफन व्हेन इट इज अलोन।
कंपेयर टू व्हेन इट इज़ इन अ फ्लॉक ऑफ 6। अगर अकेली रहती है ये तो हर कुछ सेकंड्स मतलब कुछ समय में जो है 2 बार अपना सिर उठाती रहती है ताकि इधर-उधर देखे कि कोई प्रेडेटर तो नहीं है आस-पास। और वही बर्ड अगर 6 के झुंड में रहती है तो उसका बार-बार सिर उठा कर के देखने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। So what we see that the surveillance time of the individuals is considerably reduced as the size of the group grows. जैसे जैसे ग्रुप ग्रो होता है वैसे वैसे वो टाइम वॉचिंग का जो टाइम है वो कम हो जाता है, जैसे आपने इस कार्डियोलिस बर्ड में देखा। हिरणों को भी अगर आपने जंगल में कभी देखा हो तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि वो बार बार जो है अपनी गर्दन उठा उठा करके देखते रहते हैं। क्यों देखते हैं? कि आसपास कोई प्रेडेटर या कोई नुकसान पहुंचाने वाले कोई तत्व तो नहीं है या कोई वहां पर शिकारी तो नहीं आ रहा है। और वही झुंड में रहते हैं तो समय समय से क्योंकि देखते रहते हैं तो वो सुरक्षित भी महसूस करते हैं और जो उनके जो बच्चे होते हैं छोटे वो ग्रुप के सेंटर में रहने की वजह से वो भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। अ लार्जर ग्रुप ऑल्सो कॉजेज टू नोन इफेक्ट्स। दो और इफेक्ट्स होते हैं, वो है डाइल्यूशन इफेक्ट और दूसरा है कन्फ्यूजन इफेक्ट। डाइल्यूशन इफेक्ट क्या हुआ कि डाइल्यूट कर दिया है। डाइल्यूट हम क्या करते हैं, जैसे शरबत में पानी डाला डाइल्यूट कर दिया। ये कैमरो हॉर्सेस जो हैं ये क्या है, दे एस्टैब्लिश मोर न्यूमरस ग्रुप्स इन समर डिक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय पैरासाइट्स। जब समर्स आते हैं तो उन्हें पता है कि पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं और पैरासाइट्स जो है वो अगर एक को इन्फेक्ट करेगा तो दूसरे को भी डेफिनेटली इन्फेक्ट करेगा। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं। तो इससे उन्होंने क्या किया, डाइल्यूट कर दिया। और डाइल्यूट करने से क्या है, पैरासिटिक अटैक जो है वो कम हो गया क्योंकि उसको ग्रुप छोटे छोटे हैं तो वो जल्दी से और वही एक लार्ज ग्रुप में अगर वो रहेंगे तो वो पैरासाइट्स एक को अगर इन्फेक्ट करेगा तो सबको इन्फेक्ट करेगा। इसी तरह से कंफ्यूजन इफेक्ट क्या है, इट सीम्स दैट predators find it difficult to maintain focus on a prey when facing a large group। जब लार्ज ग्रुप में एनिमल्स रहते हैं तो जो प्रेडेटर है उसको अपने शिकार पे फोकस करने में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो लार्ज ग्रुप में इधर से उधर मूव करते रहते हैं। They find difficulties to choose an individual due to the overload of moving targets in their visual canal। उनके आंखों के सामने ग्रुप तो बहुत बड़ा है, उनको प्रे भी नजर आ रहा है, बट वो प्रे को चूज नहीं कर पाते हैं कि इस प्रे को पकड़ना है कि उस प्रे को पकड़ना है, बिकॉज दे आर मूविंग। फॉर एग्जाम्पल चीता और अ लायन और अ टाइगर जब वो शिकार करता है, अगर ग्रुप बहुत बड़ा है तो उसके सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन जो आंखों के सामने जो नज़र है वो किसी एक पे फोकस करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो दिस ग्रुप लिविंग अडेप्टेशन कैन क्रिएट कन्फ्यूजन। ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है और जैसे ही प्रेडेटर का एहसास होता है तो वो जो ग्रुप है वो तो एक साथ दौड़ लगाता है। So it cannot concentrate on a particular prey species. नेक्स्ट है एनहांस्ड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ग्रुप लिविंग में रहने की वजह से प्रेजेंस ऑफ सोशल इंफॉर्मेशन विद इन द ग्रुप प्रोवाइड होता है। इट अलाउज बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स टू फाइंड एंड सेलेक्ट पोटेंशियल मेटिंग पार्टनर्स बिटवीन देम। ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है, उसमें रहने की वजह से इनको सोशल इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रहा है, मेल और फीमेल मेंबर्स को एक दूसरे को सेलेक्ट करने की पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल मेटिंग पार्टनर्स की जो है सिलेक्शन वो बढ़ जाता है। एंड लिविंग इन अ ग्रुप अलाउज फॉर हायर रिप्रोडक्टिव सक्सेस as individuals have access to a greater number of potential mates and the possibility to choose।
रेट ऑफ सक्सेस भी जो है वो अधिक होता है जब ग्रुप लिविंग में रहते हैं, यानी एक ग्रुप में जब एनिमल्स रहते हैं तो उनका जो रेट ऑफ सक्सेस जो है वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो पोटेंशियल मेट्स यानी फर्टाइल मेट्स जो हैं मेल्स, वो अवेलेबल होते हैं फीमेल्स को, और फीमेल्स को मेल और मेल को फीमेल। तो पॉसिबिलिटी ऑफ चूजिंग जो है वो बढ़ जाती है, इसीलिए रिप्रोडक्शन का जो सक्सेस रेट है वो भी हायर होता है। Individuals living in groups have a higher chance to find a mate and successfully reproduce। इसीलिए उनको मेट ढूंढने में जो है वो मुश्किल नहीं होता है, आसानी से मेट मिल जाता है, मेल को फीमेल और फीमेल को मेल, और सक्सेसफुली वो रिप्रोड्यूस करते हैं। So on the basis that larger groups present a great number of accessible mates nearby। तो जितना लार्ज ग्रुप होगा, मेट्स जो पोटेंशियल मेट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। नाउ देर इज़ अ हाइपोथेसिस that reproductive success of a female is determined by the number of eggs she can produce। सक्सेसिव रेट फीमेल मादा की जो है वो कैसे आंकलन हो सकती है? अंडों की संख्या से। जितने ज़्यादा अंडे देगी इसका मतलब वो फीमेल उतनी ज़्यादा फर्टाइल है। वाइल रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ अ मेल, और वही नर का कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द नंबर ऑफ फीमेल्स ही मेट विथ। मादा का जो है सक्सेस, रिप्रोडक्टिव सक्सेस किस पर डिटरमाइन होता है? बाय द नंबर ऑफ एग्स शी कैन प्रोड्यूस, जितने अंडे वो दे सकती है। इसमें आप देख सकते हैं एक चिड़िया ने 2 दिए हैं, एक ने 3 दिए हैं, एक ने 4 दिए हैं, एक ने 5 दिए हैं। ऊपर आप 5 बच्चे देख सकते हैं, 5 से अधिक भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब फीमेल जो है उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है डिपेंड्स ऑन it can be determined by the number of eggs she can produce, and in case of males it is determined by the number of females he mates with। जितने मादाओं के साथ वो मेट करता है उससे उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस डिटरमाइन होता है। Protection against predators, this is one of the most remarkable advantage of group living, as it allows to identify predators more efficiently as well as to locate prey। क्या है, क्यों इतना रिमार्केबल है ये ग्रुप लिविंग के अंदर प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेडेटर? क्योंकि दे कैन आइडेंटिफाई प्रेडेटर मोर एफिशिएंटली। जैसे कि आपको बताया, ग्रुप में जब बहुत बड़ी तादाद में नर, मादा, बच्चे, तो इन एवरी ग्रुप व्हाट वी सी देयर आर मेल्स एंड फीमेल्स। उसमें भी कैटेगरी होगा एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, सब एडल्ट मेल, सब एडल्ट फीमेल। फिर जो यंग वंस, छोटे बच्चे, तो हर एज ग्रुप के एनिमल्स होंगे। तो जनरली इन अ ग्रुप द यंग वंस आर ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ द ग्रुप, और जो पेरीफेरी पे होते हैं वो एडल्ट मेल्स होते हैं ज़्यादातर। तो दे आर गिविंग प्रोटेक्शन टू द ग्रुप। अब चारों दिशा में वो देखते रहते हैं, जैसे आपको बताया था सर्वेलेंस जो है वो बढ़ जाती है, तो चारों तरफ निगाह रहती है उनकी। सो दे कैन आइडेंटिफाई प्रेडेटर मोर एफिशिएंटली। और वही अकेला सिंगल होता तो अगर वो सामने देख रहा है तो पीछे का नहीं पता चलेगा उसको, साइड में लेफ्ट में देख रहा है तो राइट का नहीं पता चलेगा, राइट में देख रहा है तो लेफ्ट का नहीं पता चलेगा। But in a group, when all the animals are looking on all 4 directions, they are more efficiently surveilling, so they can identify predators more efficiently। और ग्रुप में प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ इंटर स्पेसिफिक ही नहीं हो सकता है। अब दूसरे प्रेडेटर्स से ही बचाना नहीं होता है, अपने खुद के सेम स्पीसीज के अंदर भी प्रोटेक्शन हो सकता है। जैसे कि लायंस के केस में, लायंस में हमेशा यंग वंस जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसको लायनस यानी जो मादा होती है वो हमेशा एरेंट मेल से बचा करके रखती है। जो मेल है, एडल्ट मेल जो है,
उनसे बचा के रखती है, क्योंकि इनके अंदर एक नेचर होता है जिसमें वो नर बच्चों को मार देता है। तो टू प्रोटेक्ट द यंग वंस फ्रॉम द एरेंट मेल्स ऑल्सो, these lioness will protect their young ones, thus preventing infanticide, यानी बच्चों को मारने से या मरने से बचाने के लिए भी ये लोग ग्रुप में रहते हैं। तो दिस नेचर यू कैन सी इन द केस ऑफ लायंस। मादाएं सारी एक साथ रहती हैं और उनके बच्चे उनके साथ साथ रहते हैं। तो इन दिस दे कैन प्रोटेक्ट द यंग वंस फ्रॉम द एरेंट मेल्स। और जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर्स है, प्रेडेटर और प्रे, जैसे इसमें चीतल जो है हिरण को मार रहा है, हिरण के बच्चे को, तो वो अपने बच्चों को बचाना या अपने झुंड के जानवरों को बचाने में भी ज़्यादा सर्वेलेंट होते हैं। अगर ग्रुप में ये अडल्ट मेल्स जो है वो चारों दिशा में देखते रहते हैं और सतर्क रहते हैं। दे कैन आइडेंटिफाई कि प्रेडेटर सामने से आ रहा है, और वो जैसे ही कॉल करेंगे, इशारा करेंगे, उनके साउंड्स होते हैं अलग अलग अलार्मिंग साउंड, दे कैन अलार्म द ग्रुप टू रन अवे। These are the predator prey examples, जिसमें ईगल, हॉक जो है वो छोटे एनिमल्स, छोटे बर्ड्स को जो है अपना शिकार बना रहे हैं। तो अकेले रहेंगे तो आसानी से शिकार बन जाते हैं, और ग्रुप में रहने से वो बचे हुए रहते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। Efficient food search is also one of the advantage of group living. Now this becomes more effective as the size of the group increases. जैसे ग्रुप इंक्रीज होता है वो वैसे इफेक्टिव होता है। There is a more efficient detection of prey. In addition, if we refer to shoals of fish, the larger groups are less visible in front of the prey. जो shoal of fishes यानी मछलियों का झुंड, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कम से कम 4000 फिशेस होंगी इसके अंदर, एक झुंड के अंदर। तो व्हाट हैपन्स, ये जो शोल ऑफ फिशेस है, जो लार्जर ग्रुप है, जब किसी प्रे के सामने रहता है तो वो सुपर पोजिशन, बिकॉज ऑफ सुपर पोजिशन और पानी का जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि पानी के अंदर रहते हैं, उनकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो अपने आप में एक वो लेंस का ही काम करता है वाटर। तो जो सुपर इम्पोजिशन ऑफ डिटेक्शन स्पीयर्स और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के वजह से जो प्रेडेटर है वो इंडिविजुअल को आइसोलेट नहीं कर पाता है। इट कैन नॉट आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल, और उसको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी सी कोई चीज़ उसके सामने है। तो बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑल्सो दे आर नॉट अलाउिंग द प्रेडेटर्स टू ईट दैम। उनको खाने के लिए जो है वो कंफ्यूज, जैसे ये भी एक तरह का एक कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रहे हैं। पर बर्ड्स के केस में जो है वो दिस इज़ नॉट द केस विद बर्ड्स, वेयर लार्जर फ्लॉक्स आर मोर विजिबल देन आइसोलेटेड। बड़े जो फ्लॉक्स हैं वो ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, आसानी से दिखाई दे जाते हैं कि ये बर्ड्स का झुंड यहाँ बैठा हुआ है या यहाँ पर उड़ रहा है। बट उनके दूसरे एडवांटेजेस है, जैसे कि मैंने आपको लोकोमोशन में बताया था, लोकोमोशन की कैपेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि हवा में जो टर्बुलेंट एयर है उसको वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं वी शेप में उड़ान भरने के वजह से। तो बर्ड्स की जो फ्लॉक है वो तो कुछ संख्या में हो सकती है, बट फिशेस का जो ग्रुप है शोल में वो 4000 स्पीसीज से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, जिसमें ये इस तरह का ग्रुप में चलने की जो नेचर है वो मोर देन 4000 स्पीसीज में ये देखा गया है। Now, despite the great advantages of group living, it also comes with certain costs that can be damaging to the group. एडवांटेजेस तो हमने बहुत सारे देखे कि किस तरह से इनको एडवांटेजेस मिल रहे हैं, बट इसके अलावा भी जो है कुछ ऐसे डैमेजिंग कैरेक्टर्स हैं, नेचर है इस ग्रुप लिविंग का, जैसे एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ फूड, एन इंक्रीज इन कंपटीशन, स्ट्रेस, appearance of unwanted
agonistic behavior या dominance. So there are certain side effects also, but ultimately beneficial to the group is more living in a group living. We will discuss the disadvantages of group living in our next lecture. Thank you so much.